वेलकम आयुष्मान। ट्रेड वाले कहते रह गए कि दिवाली उस तरीके की दिवाली नहीं होगी, पर आयुष्मान आया और दिवाली को अपना बना लिया। हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? I feel very validated. It's very gratifying as an artist, though I'm not a number guy. Uh, for me, this number means that it's reached out to a lot of people. That's what an artist craves for. That your art, whatever you do, should be watched by more and more people. And that was what has happened to me. For the first time, I've gotten an opening of 25 plus year. And I've always had small mid budget films with maximum opening at 10.6 of my last outing, Dreamgirl 2. And this has surpassed it by 2.5x. So I feel very validated. बट उस तरीके का एक्सपेक्टेशन था व्हेन द फिल्म ओपन, यू थॉट कि इस तरीके का नंबर्स आएंगे इनको? Expectation was there because it is part of a very successful universe. Like Maddock Horror Comedy Universe is the most successful in Hindi cinema. So expectation was always there, but it should be seen as a standalone film because it's an origin film. It is not a sequel. It is like a genesis of a new character. So with that regard, I think it is done phenomenally well. बट इट्स आई थिंक द 100 crore क्रॉस हो गया है। जी. दिस इज द फिफ्थ 100 crore film of Yes. yours. Yeah. So again, that how important is a 100 crore number for you? And I don't know. As I said, I'm not number guy, but I really feel that if you cater to a wider audience, it gives you, for example, Thama's success has given me more confidence to choose films which are off center, which are not commercial on paper, and give them, uh, a better reception in theaters. I firmly believe, like the success of Article 15 in the past was also due to my commercial films before that. So this gives me confidence uh, and gives me the courage to take more risks with the scripts, and I will continue to take that thanks to Thama. And has the perception of the industry changed कि नो ऐसा नहीं कि ऑफ सेंटर लाइक यू मेंशन ऑफ सेंटर फिल्म करता है और नंबर्स हमें रिस्क होता है, ऑफ सेंटर फिल्म में Yeah. ऑलवेज रिस्क रहता है। इंडस्ट्री का परसेप्शन चेंज हुआ, इंडस्ट्री का रिएक्शन कैसे आ रहा है? They're all very happy. Of course, they all want people to come to theaters, and theatricals should do well. And they all know my lineup, which is like very commercial. Like for me, Thama was a very safe film. But apart from that, coming up next is Pati Patni Aur Bodo on Holi, and then followed by Suraj Barjatia sir's film later next year. But in the mix, I also have a quirky comedy with Sikhya and Dharma, which will come before that. So I'm very excited. So though these are commercial films, but in the mix, I'll also do films which are little off center, which is my core. The films that I've done pre-pandemic. That is uniquely you, like. Yeah, that's uniquely me. Yeah. So again, that gives me the courage. Do you remember your first narration of Thama that Amar gave you? That was some 4-5 years back during pandemic. And And how do you remember react? How did you react to it, rather? more than me, my daughter was very excited. That was the first time she sat on the narration and didn't get up. So I normally ask my kids to sit. Let's देखो क्या कैसा लग रहा है आपको. And when she heard it, she was very excited. I was seeing her reaction, so I realized that this could be the film which could take me to that segment of audience, the young children, basically. Because in the past, I've done films which are slightly cerebral, which are for a little more mature audience. But this film has been loved by kids. So I've reached out to kids for the first time, probably. So that gives me a lot of validation. But how did she react? Did she watch the film? How did she react to this film? It's her favorite film now. Yeah. So उसके पहले कौन सा था फेवरेट पापा का? उससे पहले ड्रीम गर्ल थी शायद. अच्छा. Yeah. It's a favorite film because kids love to watch simple narratives. This is a very broad stroke commercial film, Thama, and with a lot of visual effects, and the fight sequence between Bhedia and Betal is the highlight of the film. And with all that visual effects and visual delight, kids are loving it. What did you tell Amar? Because Amar मुझे बोला कि मैं जाके नरेशन किया तो आयुष्मान बोला कि कर पाऊंगा क्या कुछ तो something. What was the reaction? But Yeah, I had, because normally I've done films which are very realistic. So this is something which is very fantastical with a lot of action and everything. That was, I was like, I've never done this kind of action in my life. And what you're narrating to me is very outlandish. It's larger than life. So I don't know whether I'll be able to do it or not. But with workshops and everything, I think it was a lot of fun eventually. You mentioned Bhedia. Huh?
तो बाय द एंड ऑफ द फिल्म वी नो कि क्या होने वाला है. हाँ. आर यू गोइंग टू सी भेड़िया वर्सेस थामा हैपनिंग? वो व्हाट इज सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट लगा लोगों को, भेड़िया और थामा का जो क्लैश है. मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मैं खुद इस यूनिवर्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. जब भी कोई कैरेक्टर क्रॉस कर रहा था रास्ता इस फिल्म के अंदर दूसरी फिल्मों से कॉमेडी यूनिवर्स के, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी. चाहे वो भेड़िया की फाइट है या फिर जना जब होता है हैंड ऑफ गॉड के साथ. सो आई थिंक दैट दोज वर द एक्साइटिंग मोमेंट्स इन द फिल्म. And in the end, when Sarkata takes away Nawazuddin Siddiqui's character, so all that worked out pretty well for the film, and people are waiting what's going to happen next. कि आगे वाली फिल्मों में यूनिवर्स में कहाँ इंटीग्रेशन होने वाली है. to being part of universe, how exciting it is for you, और कैसे और जिम्मेदारी बढ़ती है to play those characters? How does it work for you? जिम्मेदारी सब तो अमर कौशिक और दिनेश विजन के हाथ में है, क्योंकि आई थिंक इतना इंट्रिकेटली उन्होंने वीव इन किया है यूनिवर्स को. इतना वेल इंटीग्रेटेड यूनिवर्स और कोई नहीं है शायद. ऑफ कोर्स एक बेंचमार्क्स हैं स्त्री के, जो बहुत अमेजिंग है. वहाँ से पिक्चर की पूरी यूनिवर्स की जेनेसिस हुई है. बट हैविंग सेड दैट, people are excited to watch Bhedia, Munjya, Thama, Stree all coming together, or maybe Shaktishalini in future. तो आई थिंक ये सब जब कैरेक्टर्स इंटरमिंगल होंगे तो एक बहुत ही यूनिक फ्लेवर मिलेगा जो लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं. You mentioned Shaktishalini, young actors also want to be now part of this kind. You think the younger actors are taking different kind of cinema also, choosing all kinds of cinema, or something like this, Shaktishalini, like Aneet Padda is playing that character. Yeah, absolutely. I think it's a good shift for her from a film like Sayara to Shaktishalini, जहाँ पे बहुत ही performance oriented role होगा, because Sayara was a cult commercial pot boiler romantic film, and Shaktishalini is completely different. So it will be very interesting to see her in that. Apart from that, there's Abhay Varma also, who's part of Munjya. So we have a good mix of Gen Z and millennials and Gen X coming together in this universe. Ayushmann, you mentioned Bhedia, Varun and you are almost, I think, पहला फिल्म साथ ही रिलीज हुआ था around that area time. Tell me about how do you look at that, the combination? Now we all are waiting to see y'all, तुम लोग का फेस ऑफ. हाँ, हम एक ही साल में हमने डेब्यू किया था 2012 में, and we've been seeing and meeting each other at award shows, different places. We've hung out together a lot of times. There's a great bond between us, और वो केमिस्ट्री हमारी शूट में भी नजर आई. We don't take ourselves too seriously, so we had a lot of fun while shooting. एंड तो हाँ, भेड़िया में तो डेफिनेटली थामा का होना बहुत ज़रूरी है. बदला तो लेगा थामा, क्योंकि अब भेड़िया खून पी चुका है, अब थामा को भी खून पीना है. सो आई गेस वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. और बिट्टू वाला एंगल क्या था? कौन सा वाला? बिट्टू वाला एंगल. हाँ, वही जना कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है मेरी शक्ल बिट्टू से मिलती है. ऑफ कोर्स ये एक मेटा जोक है, जो आने वाली फिल्मों में आई थिंक सबसे एक्साइटेड मैं वही हूँ कि अपने भाई को वैसे तो रोज़ मिलता हूँ, पर मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के सेट पर कब मिलूंगा, दैट विल बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन. नो, वी नो दैट तुम डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा करते हो. ऐसा सिनेमा जो तुमने हमेशा से करा है, ऐसा कौन सा जॉनर ऑफ सिनेमा यू डोंट वांट टू डू? तुम उसको टच नहीं करो, उस तरफ जाना नहीं चाहोगे. कमर्शियल तो तुम कर रहे हो, अभी सूरज की फिल्म आ रही है, मुदस्सर की फिल्म है. व्हाट इज दैट काइंड ऑफ सिनेमा यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम? आई थिंक जो बहुत डार्क और डिप्रेसिंग सिनेमा है, मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ. मतलब डार्क कॉमेडीज कर सकता हूँ, डार्क टोन की फिल्म एक आर्टिकल 15 थी, पर उसमें एंड में एक रे ऑफ होप और पॉजिटिविटी थी, तो मैं उसे डार्क जॉनर में इंक्लूड नहीं करता हूँ. लेकिन फिल्म्स विच आर वेरी डार्क, मैं उसको अवॉइड करना चाहता हूँ. मैं फैमिलीज़ को केटर करना चाहता हूँ, और ऐसी फिल्में करना चाहता हूँ जो फैमिलीज़ मिलकर साथ में देख सकें, थिएटर में एंजॉय कर सकें, कम्युनिटी व्यूइंग का हिस्सा बने. एंड दैट्स माई ट्रू एंडेवर और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हिंदी सिनेमा, कि मैं ऐसी अलग सब्जेक्ट्स करना चाहता हूँ जो फैमिली के साथ भी देखे जा सके. अपार की मैंने बिट्टू की बात की, तो अपार को कैसे देखते हो? अपार एज एन एक्टर, उसकी जर्नी, बिकॉज तुम लोग दोनों भाइयों ने सब कुछ साथ शुरू किया, कहाँ जाते देखते हो अपार को? अपार से मैं बहुत प्राउड हूँ, क्योंकि वो क्रिकेटर बनना चाहता था पहले. वो हरियाणा का अंडर 19 क्रिकेट कैप्टन रह चुका है, बट सडनली उसने लॉ पढ़ी, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, रेडियो वगैरह करने के बाद वो मुंबई आया थिएटर करने के बाद, एंड
he is very successful as an actor. He's a great all-rounder. In fact, जब वो acting नहीं कर रहा होता, वो events में busy होता है. So he's anchoring or doing events or singing songs. उसके music viral हो रहा है. So he's doing everything whatever he wants to. दिन में दो घंटे फुटबॉल खेलता है. So he's living a great life of an artist and a sports person also at the same time, which is very rare. So I'm very proud of him, whatever he's doing. You know, when I heard about Suraj Bajjatya, Ayushmann, what was your first impression when you met Suraj? Must have met him in the past, but as an artist, do a film. कैसा था? How was he as a person? Whenever I meet him, I touch his feet. हाँ. So that's the kind of vibe he gives. Because you want to touch his feet, because despite seeing so much of success, उनके अंदर एक सरलता है, सहजता है, जो बहुत रेयर है. क्योंकि इतनी सक्सेस देखने के बाद आप थोड़ा सा स्वे हो जाते हैं टूवर्ड्स मटीरियलिज्म और मे बी टूवर्ड्स थिंग्स अराउंड यू. शोबिस का हिस्सा है. डिस्पाइट ऑफ दैट ही लिव्स अ वेरी सिंपल लाइफ. तो वो वल्नरेबिलिटी और प्योरिटी बहुत रेयर होती है. एंड उसी फीलिंग के साथ मैं प्रेम बनकर जाना चाहता हूँ उनके सेट पर. और ये बहुत ही खूबसूरत मेरे लिए मोमेंट है, क्योंकि बचपन से उनकी फिल्मों का फ़ैन रहा हूँ. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्ले प्रेम. And when the film was rolled? परसों से शुरू हो रही है जी. कल मेरा लुक टेस्ट था और फर्स्ट से शुरू हो रही है. ओह, हाउ डू यू लुक एट योर जर्नी अब तक? मतलब अगर तुमको पूछूं मैं कि तुम कैसे डिस्क्राइब करोगे अपनी जर्नी, तो कैसे डिस्क्राइब करोगे? मतलब यू सीन ऑल, मतलब तुमने टेलीविजन से शुरू किया, रेडियो जॉकी थे. हाउ डू यू लुक एट इट नाउ, वेयर यू रीच टुडे, एंड व्हेन यू लुक बैक, इफ एट ऑल? आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, आई थिंक. लोग इसको स्ट्रगल कह सकते हैं, पर मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत यात्रा है. क्योंकि आई एम ग्लैड इट वाज नॉट लाइक एन ओवरनाइट सक्सेस. आई टुक baby steps towards my goal or destination, which was Hindi cinema. And I've been fortunate because when I joined theatre, so probably we were the first ones to introduce amateur theatre in Chandigarh. Then I joined radio. Radio तब पीक पर था. जब मैंने टीवी किया तो टीवी पीक पर था. और जब मैं फिल्म्स में आया तो उस तरह की फिल्में चलने लगी जो मैं करना चाहता था. So universe has been really kind to me. I have gotten great collaborators, great script writers and great minds. पहली फिल्म शुजित सरकार, जो कमाल के फिल्म मेकर हैं, with जूही चतुर्वेदी as a writer. So I guess उससे अच्छा लॉन्च मुझे नहीं मिल सकता being an outsider. And it was very important for somebody like me who doesn't have any backing in the industry to कि पहली फिल्म चलना बहुत जरूरी है. हाँ, और नहीं तो वो सेकंड चांस नहीं मिलता. So I guess life has been very kind to me. पर उस समय तुमने for you to choose a Vicky Donor, तुमको घबराहट होती थी कि नहीं, बोला चलो take the chance? How was it? Actually नहीं होती थी. मुझे ऐसी फिल्म का इंतजार था. उससे पहले मैंने काफ़ी 6 फिल्मों को शायद मना किया हो, क्योंकि I was doing pretty well on television. तो मेरे पास कोई desperation नहीं थी कि मुझे करना ही करना है. Since I was a journalist also, तो I could see the struggles of actors, their success and failures. उनसे सीख कर कि मुझे लगता था कि पहली फिल्म कुछ अलग होना चाहिए. तो जब विकी डोनर हुई, I was just feeling very fortunate. You said you were a journalist. तुमको याद कौन सा पहला सेलिब्रिटी को तुमने इंटरव्यू किया था? मैंने बहुतों को इंटरव्यू किया है. मैंने अभिषेक बच्चन को किया है, नील नितिन मुकेश को किया है, काजोल को किया है, अजय देवगन सर को किया है, इमरान हाशमी को किया है. मैं MTV पे काम करता था उस टाइम पे, तो मैं फिल्म भी रिव्यू करता था. बाय द वे मैंने रिव्यूज भी किए हैं फिल्म के. सो काफी एक्टर्स को इंटरव्यू किया है मैंने. शाहरुख सर को इंटरव्यू किया है शायद. रिमेंबर MTV म्यूजिक बंद हो गया ना? ऑफ कोर्स मुझे पता है. तो मैंने एक स्टोरी भी डाली थी उस पे कि थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी. उन्होंने तो चांस दिया था मुझे. पति पत्नी और वो 2. हाँ, ये 2 कौन है भाई? टोटल 3 है. तो पत्नी है और बाकी वो जो है वो 2 हैं. How do you choose your? I want to understand. How do you choose? It has to be different. That's the reason you go to that. How do you choose your cinema? It has to be different. अगर वो जेनेरिक मोल्ड में भी है तो उसमें भी डिफरेंट और एंटरटेनिंग होना ज़रूरी है. पति पत्नी और वो तो होता है, अगर वो 2 हैं तो वही उसको डिफरेंट कर देती है. सो मेरे लिए उस रेल में भी पति पत्नी और वो जो है, जो उसका जेनेसिस तो 1978 में हुआ था BR चोपड़ा की फिल्म का, संजीव कुमार, देवेंद्र वर्मा, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए किस तरह से फिल्म अलग है, ये आपको देखने को मिलेगी. पर फ्रैंचाइजी, और वैसे भी तुम भी तो आई थिंक ऑलमोस्ट किंग ऑफ फ्रैंचाइजी हो शायद.
मैं वैसे कितने फ्रेंचाइज पे बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे लगता है जब तक कुछ नया कहने को नहीं है तो फ्रेंचाइज करने को कोई फायदा नहीं है। मैंने अभी 2-3 कितनी फ्रेंचाइज की है, ड्रीम गर्ल, शुभमंगल, अब पति पत्नी कर रहा हूँ। हम थामा को फ्रेंचाइज नहीं बोलना चाहिए, इट्स अ ब्रांड न्यू फिल्म। but now it's become part of the universe. Yeah. Tyra, the actor, the director, and the wife. Tell me about Tyra and how she's fine back. Yeah, she's absolutely fine. She's fine, and I'm very proud of her कि जो पति वो बोल रहा हूँ। शर्मा जी की बेटी शर्मा जी की बेटी उन्होंने डायरेक्ट की है। मैं बहुत प्राउड हूँ उससे। आई लव दैट फिल्म। इनफैक्ट उस म्यूजिक को क्यूरेट करने में मेरा बहुत बड़ा हाथ था। वो जितने भी उसमें म्यूजिक आया है, सो आई थिंक वो हमेशा मुझसे डिस्कस करती थी एंड आई क्यूरेटेड दैट लिस्ट एंड दैट वाज माय हम्बल कंट्रीब्यूशन इन द एंटायर स्क्रिप्ट। बाकी उसने खुद किया है, सबको डायरेक्ट किया है एंड वेरी हैप्पी कि उसको काफ़ी जगह अवार्ड्स भी मिले हैं उसको लेकर। तो तायरा का रोल तुम्हारी करियर को लेके, लाइफ में लेके किस तरीके से देखते हो? बिकॉज शी हैज बीन अ फ्रेंड, शी हैज बीन अ पार्टनर, शी हैज बीन अ वेरी गुड मदर। आई नो हर। सो तुम्हारा, हाउ डू यू डिस्क्राइब हर रोल? आई आई रियली फील दैट जब मैं स्क्रिप्ट चूज़ करता हूँ तो हमेशा उसका पार्ट रहती है। जितनी मैंने फिल्में की हैं, जब तक उनका टिक मार्क नहीं मिलता है तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। एक फेमिनिन गेज़ जो है, जो वो देती हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड उन्होंने जितनी भी मैंने फ़िल्में की हैं या कर रहा हूँ, हर एक स्क्रिप्ट उन्होंने सुनी है। तो कभी ऐसा फोमो मोमेंट होता है कि मैं इस पार्ट ऑफ सिनेमा का बनना जरूरी है? यू डू यू रीच आउट टू पीपल कि मेरे को करना है, मेरे को रोहित शेट्टी की फिल्म करना है, इसकी फिल्म करना है? ऐसा कभी सोचते हो कि तुम अपना, यू फॉलोइंग योर ओन यूनिकनेस? नहीं, ऑफ कोर्स आई रीच आउट टू पीपल। श्रीराम राघवन को मैंने खुद ही रीच आउट किया था अंधाधुन के टाइम पे। अनुभव सिन्हा सर को मैंने खुद ही रीच आउट किया था आर्टिकल 15 के टाइम पे। और रीच आउट करना चाहिए, क्यों नहीं? कभी-कभी आपको डायरेक्टर्स लाइट में नहीं देखते हैं, बट आपकी एक्साइटमेंट देखकर डायरेक्टर और एनकरेज होते हैं, बिकॉज़ ऑल यू नीड इज़ अ वेरी क्यूरियस एंड एक्साइटेड एक्टर ऑन सेट। ये नहीं कि जो 12 घंटे या 8 घंटे की शिफ्ट लगाई और चले गए। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट इंट्रीगिंग नेचर, ताकि आप अपना 100% दे सकें। एंड एक डायरेक्टर के लिए वो ड्रीम कम ट्रू होता है अगर एक्टर एक्साइटेड है फिल्म करने के लिए। ऐसा कोई फिल्म मेकर जो जिसके साथ तुम करना चाहोगे? बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं, कोई एक राजामौली सर हैं और SLV सर हैं। या ये दो तो है ही डेफिनेटली, बाकी भी टॉप ऑफ द माइंड राजू हिरानी सर, रोहित शेट्टी सर। You want to talk about, now you mentioned hours. Can I ask a question on that? Hours of artist को कुछ? मुझे लगता है कि इट्स नॉट वन साइज फिट्स ऑल। हर एक की प्रायोरिटीज अलग है लाइफ में। डिपेंड करता है। आई एम अ वेरी प्रोडक्शन फ्रेंडली, प्रोड्यूसर फ्रेंडली एक्टर, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि फ़ायदा ही हो मेरे लिए। हमेशा मैं ये बोलता आया हूँ कि सबको फ़ायदा होना चाहिए एंड फिल्म शुड बी मेड इन अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज। पर जैसे मैंने बोला, हर एक की प्रायोरिटीज़ अलग है। मैं बस, मेरी प्रायोरिटी अभी अलग है, किसी की और प्रायोरिटी कुछ और हो सकती है। सो हर एक के लिए ये आंसर, एक आंसर नहीं हो सकता इसका। जाते जाते शाहरुख टर्न 60। या आई एम अ प्राउड SRK, जैसे मैं बुलाता हूँ अपने आप को। आई एम अ ह्यूज शाहरुख फैन एंड मेरा एक्टर और मुंबई आने के बीच में उनका बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज आई बीन फॉलोइंग हिम सिंस माई चाइल्डहुड। पहला स्टार जो मैंने अपनी लाइफ में देखा था वो शाहरुख सर थे, व्हेन आई वाज प्रॉब्ली 7 और 8। कसौली में उनकी शूट चल रही थी माया मेम साहब की। आई हैड सीन हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई स्टडीड मास कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ही इज़ अ मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट। सो मैं वो वही करता रहा जो उन्होंने किया, चाहे जल्दी शादी जल्दी बच्चे। आई जस्ट फॉलोड हिम टू द टी। सो इट्स ही इज़ ऑलवेज बीन माई इंस्पिरेशन। सो हैप्पी 60 टू हिम, and God bless him with good health, happiness, and may his kids shine, and very happy for him. What is your ultimate dream, My Ayushmann? ultimate dream, I live one day at a time. I think I'm living a dream right now. जो भी ऊपर वाला ने मुझे दिया है, it's a blessing. May all the blessings is coming to you. All the best. Thank you, Do Bharti ji. well. Thank you so much.